My admission is I have got my admission. I am just waiting for my visa appointment. So I am going to guide you. Basically, you guys are doing, major of you are doing your degree, and right now you don't know that how to apply in different universities. Different universities, you will after your graduation, you will surely apply to different countries. So I will just tell you about about Germany, that how will you apply to the Germany universities, how will you shortlist the universities, which documents you need for the application, and after that, after your application, how will you book the visa appointment. So I will tell all these things in this webinar. So let's start it. So these are the things which I will basically teach you, that why you guys come to Germany, that why you guys apply to German universities. After that, master's eligibility criteria, that which are the basically eligibility criteria of masters, like which things you need to apply for masters in Germany. After that, the complete application process. It is a basically 9-step application process. After that, I will tell you the ideal timeline, that in which month you start your application. There are basically two intakes, winter intake and summer intake in Germany. In Germany, Italy, Finland, wherever you apply, basically there are two intakes, winter intake and summer intake. So after that, I will teach you if you have low CGPA, like if you have GPA below 3 or below 3 is also a good GPA. If you have GPA below 2.7, so how you guys can get admission with this CGPA. After that, I will tell you about some scholarships. Like if you guys have GPA above 3.7, 3.5, or if you are a gold medalist, then how you will get your scholarships for Germany. So after that, the university requirements, that which documents university need. Like if you are applying to some universities, which document you need. After that, visa requirements, that which documents or which things are required for the visa process. Like you will, when guys will get admission, you will apply to the embassy website. You will apply on embassy website, that which requirements embassy have. After that, I will tell you how to avoid block account. Basically, some countries require bank statement and some require block account. Germany basically require block account. So how you will avoid the block account? And after that, there are some frequently asked questions. So this book is basically written by Muhammad Umair Khan. He's also alumni of UT. I think he is graduated in 2017. He was in software. Yes, he was in software department, and he was graduated in 2017. And now he is in Berlin, and he is doing his, I think, data science course in Berlin. So this book is basically written by him. He has a channel with name Muhammad Umar Khan on YouTube. You guys can watch his videos on YouTube. On YouTube he teach different kind of things regarding Germany. So this book is basically written by him, and it is a basically complete step-to-step guide for Germany. So let's start. First of all, you guys think that why we go to Germany? That why we there are a lot of options for you. You can go to UK, USA, Italy, Finland. Why Germany? So education in Germany is fully free. Like there are basically two kind of universities in Germany. One is public university and one is private university. 80 to 90% universities in Germany are public. Like in public university, there is no fee. If you get admission in any public university, you guys will go on a fully scholarship. You guys will not pay anything to the university. It will be a fully, matlab your admission will be fully free, no tuition fee. So this is the main thing people apply for Germany. Also, there are plenty of jobs in Germany. German economy is basically a number one economy, number one or number two economy worldwide, and it is also a number one economy of Europe. So there are different reasons for choosing Germany. Like you will get a lot of jobs. You will students basically nowadays a lot of students are applying for Germany. So after that, here you will get 18 months post study visa. Like if you will get admission and you will apply for visa, you will get an 18 months study visa. It is basically in Germany, master is of 2 years, so you get 18 months study visa. You will also extend it.
I will tell you later. And also, you will get your nationality in 5 years. Like if you complete your degree in 2 years, and you will after your after your degree, mm, when you are studying, when you are doing your masters in Germany, your visa category is study visa. After your 2 years, after your 18 months study visa, you will move toward the job search visa. It is basically after 22 months. So you will in those 22 months you will search for different jobs. So if you get any kind of job in Germany, you will again convert your visa to the work visa. Firstly, when you go to the Germany, your visa is study visa. After that, you will convert that visa to the job search visa. It is basically your 18 to 22 months visa. After your 18 months are completed, you will convert your visa to the study. You will visa to the work visa. So let's start it. So first of all, we will see what are the eligibility for masters. Like which kind of students can apply for masters in Germany. So for masters in Germany, you need 16 years of education. That 16 years of education can be BSc and MSc, like 2 years of BSc and 2 years of MSc. Or you can do your 4 year of bachelor's, like you guys are doing from UAT. So after doing your bachelor's, your education will be of 16 years. So you can do your BSc and MSc, then you can apply for the Germany, or you can have your bachelor's degree, and then you can also have your 4 years bachelor degree or your 3 years bachelor degree. If you have your 3 years bachelor degree, you can still apply for Germany. So this is the main thing for the master's eligibility. Like you have your bachelor's, you have your previous bachelor degree. Secondly, we will see the general requirements. So in general requirements, you should have at least 2 CGPA. Like people get their admission on 2.5, 2.6 CGPA, but below 2 CGPA, 2 CGPA is the least CGPA you have. So I recommend you guys should have 2 point above 2.7, because nowadays there's a lot of competition in Germany. Like if you guys have GPA around 2.7 to 3, you still have some difficulties to get admission. But there are a lot of options. I will teach you. I will tell you later. There are a lot of options you can. There are a lot of universities in which you can apply with low CGPA. So you should have at least 2 CGPA. So in Germany, in Pakistan, we have maximum of 4 CGPA. Like maximum CGPA is 4, and minimum is like the minimum CGPA on which you can get degree is 2. लाइक इन पाकिस्तान में आपका मैक्सिमम सीजीपीए 4 होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम होता है, और मिनिमम जिसपे आपको डिग्री मिलती है, लेकिन यूटी के अंदर भी मिनिमम 2 पे मिलती है. अगर आपका सीजीपीए 2 से भी कम होगा तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी, बेशक आपके सारे कोर्सेज पास है. लेकिन जर्मनी के अंदर 4 इज द मिनिमम एंड 1 इज द मैक्सिमम. मतलब उल्ट समझ लें इसका कि 1 मैक्सिमम होता है और 4 मिनिमम होता है. तो जहां पे भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है. तो उसमें जब आप रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपका इतना जीपी होना चाहिए. तो वो पाकिस्तानी जीपी नहीं होगा, वो जर्मन जीपी होगा. मैं आपको बताता हूँ कि जर्मन जीपी को आप अपने पाकिस्तानी जीपी को जर्मन जीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ. तो पहले उसको देख लेते हैं. सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है जर्मन सीजीपीए कैलकुलेटर. तो ये वेबसाइट 2-3 आ जाएंगी. आपने टीयूएम की वेबसाइट पे चले जाना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक की एक वेबसाइट है. इस पे चले जा रहे हैं. आपने सिंपल इधर अपना मैक्सिमम ग्रेड यूनिवर्सिटी का लिखना है. मैक्सिमम ग्रेड आपकी यूनिवर्सिटी का 4 है, मिनिमम ग्रेड आपकी यूनिवर्सिटी का 2 है जिसमें डिग्री मिलती है आपको. और यहाँ पे आपने अपना सीजीपी लिख लेना. सपोज आपका सीजीपी 3 है. जब आप इस कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जर्मन सीजीपी आ जाएगा. दिस वन, योर जर्मन इज 2.5. सपोज somebody have CGPA 3.5 in Pakistan. So if you converted your German in German system, your CGPA is 1.7. तो जब भी आप यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे, वहां पे जो सीजीपी लिखा होगा, सपोज आपको इतना जीपी चाहिए, वो बेसिकली जर्मन सीजीपी होगा, पाकिस्तानी नहीं होगा. मोस्टली वहां पे लिखा होता है कि आपको जर्मन 2.5 चाहिए होता है. 2.5 इज पाकिस्तानी 3. यू कैन सी. तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में होता है कि आपका कम से कम पाकिस्तानी 3 होना चाहिए. लेकिन ये मेजरली ऐसा नहीं है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अलावा भी है. मैं आपको बाद में दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कैसे करनी है.
तो वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी नहीं देखना, आपने जर्मन अपना कन्वर्ट करना है तो आपने देखना कि आपका जर्मन जीपीए कितना है, तो उस हिसाब से आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वो तो आपका वहाँ पे लिखा है 2.5 और आपका पाकिस्तानी 2.5 का वो अप्लाई अप्लाई कर देते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनका क्राइटेरिया है कि आपका जर्मन 2.5 होना चाहिए, पाकिस्तानी 3 होना चाहिए। तो आपको मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज योर आइल्स। तो आई सजेस्ट कि मिनिमम आइल्स ना 6.5 होना चाहिए। 6.5 इज बेसिकली B2। डिफरेंट लेवल्स हैं, लाइक A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आपका मिनिमम B2 होना चाहिए। 5.5 से 6.5 तक ना B2 होता है। 5.5 हो जाए, 6 हो जाए, 6.5 हो जाए, B2 की कैटेगरी के आपके। इससे नीचे जो है वो B1 है, और 6.5 से ऊपर जाएंगे तो आप सी कैटेगरी में चले जाएंगे, C1 C2। तो आई रिकमेंड कि आपका मिनिमम B2 कैटेगरी में होना चाहिए। मतलब आपका जीपी आपका आइल जो है वो 5.5 6.5 के इन बिटवीन होना चाहिए जर्मनी के लिए। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की। डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लाइक उसमें बहुत ज्यादा हाई सीजीपी वाले लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांस बहुत कम होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको आइल्स देना चाहिए और मिनिमम 6.5 आपका आइल्स होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड ये है कि आपका जीपीए मिनिमम, यहाँ पे तो 2 लिखा है लेकिन मिनिमम आपका 2.5 अबव होना चाहिए। और थर्ड ये है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए मिनिमम 6.5। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होती है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे बेसिकली क्रेडिट आवर्स होते हैं, लाइक आपके सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर होता है, 4 क्रेडिट आवर होता है। 3 क्रेडिट आवर का थ्योरी होता है और 1 क्रेडिट आवर की आपकी लैब होती है मेजरली। लेकिन जर्मनी के अंदर क्रेडिट आवर्स नहीं होते, जर्मनी के अंदर ईसीटीज होते हैं। तो आपकी एक बैचलर की डिग्री है 3 साल की या 4 साल की जो आप यहाँ पे करते हैं, वो बेसिकली 180 ईसीटीज के इक्वल है। यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है। तो आपकी जो जहाँ पे भी जब आप रिक्वायरमेंट्स देख रहे होंगे, अभी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर रही होंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा आपके आपके पास मिनिमम 180 ईसीटीज होने चाहिए बैचलर्स के अंदर। तो आपकी जो 4 साल की जो डिग्री है पाकिस्तानी, वो 180 ईसीटीज के इक्वल है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई जगह पे ऐसा भी होगा कि लिखा होगा कि आपके 210 ईसीटीज होने चाहिए, लेकिन उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप उनमें अप्लाई करोगे तो कई दफा ऐसा होता है, आप उनमें अप्लाई करते हो, वो आपको एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आपको कहते हैं जो आपके 30 ईसीटीज रहते हैं वो आपने वहाँ के पढ़ने हैं। ये नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है कि एक स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है कि उसके 180 सीटीज थे, उसने यूटीसी से डिग्री की थी। तो यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन दे दिया, जर्मन यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उसको ये बोला कि आपने एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना है 30 ईसीटीज का वहाँ आके, तो आपने अपने प्रीवियस 210 ईसीटीज कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपके अपना मास्टर्स कोर्स स्टार्ट करना है। तो आपके 180 ईसीटीज आपका बैचलर्स डिग्री होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे भी अगर आप फर्ज करें एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अगर 210 ईसीटीज वो मांग रहे हैं तो आपकी 180 है। अगर वो आपको एडमिशन दे भी देंगे तो आपको 30 ईसीटीज वहां पे जाके पढ़ने पड़ेंगे, जर्मनी में जाके आपको एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, जिसमें आप वो आपको सब्जेक्ट्स बताएंगे कि आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए, वो आपको वहाँ पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद आपने अपना मास्टर स्टार्ट करना है वहाँ पे। तो ये ईसीटीज वाला भी आपने अपने दिमाग में रखना है कि आपकी जो डिग्री है वो 180 ईसीटीज की है। इसके अलावा हम ये बेसिक चीजें चीजें हैं कि आपके सीजीपीए, आपके आईएलटीएस और आपका 180 ईसीटीज का बैचलर्स का डिग्री। इसके अलावा आपका सीजीपीए एक अच्छा जीपी होना चाहिए। आई रिकमेंड कि 2.7 से 3 के अंदर भी हो तो अच्छा जीपी, इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छे चांसेस आपके एडमिशन के। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि 9 स्टेप्स देखते हैं एप्लीकेशन के। अब आपने अपने देख लिया कि आपके पास ये चीजें हैं, आपके पास आईएलटीएस है, आपका जीपीए अच्छा है, आपके आपके पास बैचलर्स की डिग्री है। अब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है एप्लीकेशन का। तो इसमें चलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें बेसिकली जर्मनी के अंदर 2 इनटेक्स होती है, विंटर इनटेक और समर इनटेक। विंटर इनटेक बेसिकली स्टार्ट होती है मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर, और उसकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं मार्च अप्रैल, मतलब एडमिशन खुल जाते हैं यूनिवर्सिटियों की, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो मार्च अप्रैल में, और अक्टूबर में जाके आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं विंटर इनटेक। इसी तरह समर इनटेक की सितंबर अक्टूबर में, जिस तरह अभी ये सितंबर अक्टूबर चल रहा है, तो अभी समर इनटेक जर्मनी की चल रही है। तो सितंबर अक्टूबर में आपकी यूनिवर्सिटीज जो सी एडमिशन ओपन कर देती हैं, और ये क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होती हैं, कुछ की मार्च में होती हैं, कुछ की अप्रैल में होती हैं। तो अगर देखा जाए कि कौन सा इनटेक बेटर है, तो विंटर इनटेक को बेटर इनटेक कहा जाता है, क्योंकि विंटर इनटेक में 100% यूनिवर्सिटीज की एडमिशन ओपन होती हैं।
समर इनटेक को आप समझिए कि एक किस्म का स्प्रिंग इनटेक होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज की स्प्रिंग इनटेक होते हैं, वो मतलब मेजरली इनटेक जो है ना वो विंटर इनटेक है। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं, आई थिंक 100% यूनिवर्सिटीज हैं वो विंटर इनटेक में एडमिशन जो है वो ओपन करती हैं। तो स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, और अक्टूबर की यूनिवर्सिटी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था। तो मेरी तो आपसे यही है कि आप जिस तरह मेजरली यूनिवर्सिटियों जो बच्चे हैं वो आई थिंक जुलाई या अगस्त में फ्री हो जाते हैं अपनी डिग्री, उनकी डिग्री अगस्त में कंप्लीट होती है। तो उनको अप्रैल से पहले पहले तक अपनी डिग्री ले लेनी चाहिए, अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले लेनी चाहिए, उसको अच्छी चीजें अटेस्ट करवा लेना चाहिए। और मार्च या अप्रैल में उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट होने चाहिए, उनके पास आइल्स होना चाहिए। वो मैं नीचे आपको बताऊंगा कि किस टाइमलाइन के थ्रू आपने ये सारा काम करना है। तो विंटर इनटेक में आप अप्लाई करो तो ज्यादा मतलब प्रेफरेबल है, और आपको ज्यादा चांसेस होंगे एडमिशन मिलने के। अब स्टेप्स पे चले जाते हैं, 9 स्टेप्स एप्लीकेशन प्रोसेस पे। मतलब आपने जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है एप्लीकेशन का, तो ये स्टेप्स हैं कि आपने इन स्टेप्स के ऊपर चलना है। सबसे पहले तो अपना आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 16 साल की, आपके पास आईएलटीएस होना चाहिए, और आपका जीपीए एक अच्छा जीपीए होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। अब यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है, एक वेबसाइट है DART.de। इसे मैं आपको जाके बताता भी हूँ। तो इस वेबसाइट पे जाने, इस वेबसाइट पे जाकर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई होंगे। लाइक मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये डार्ट की वेबसाइट है, आप इसने इस वेबसाइट पे जाना है आपने। इस वेबसाइट पे जाके नीचे हो गया इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में, या आपने नीचे आना है और नीचे इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा, आपने इसमें चले जाना है। या मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से आपने शॉर्ट लिस्ट कैसे करनी है। लाइक कुछ यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री होगी, उसकी इलेक्ट्रिकल होगी, उसकी इन्वायरमेंटल होगी, तो आपने अपने कोर्सेज को चूज कैसे करना है। ये जो डार्ट की वेबसाइट है, इसमें जर्मन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सारी यूनिवर्सिटीज का डाटा यहाँ पे है, जितने भी कोर्सेज हैं सबका डाटा यहाँ पे है। तो यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फिल्टर पे अप्लाई करनी है। लाइक आपने मास्टर्स की डिग्री करनी है, इंग्लिश कोर्स करना है, फुली इंग्लिश कोर्स करना है, बस ये दो फिल्टर्स लगाने हैं और आपने सर्च का बटन दबा देना है। अब यहाँ पे आपने जाके किस कोर्स में आपने एडमिशन लेना है। लाइक मैंने एडमिशन लेना है कम्युनिकेशन के कोर्स में। लाइक सपोज इलेक्ट्रिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जर्मन, यहाँ से सबसे पहले आपने फिल्टर्स लगा लेने हैं। फिर ट्यूशन फी को आपने कर देना है नो ट्यूशन फी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी जब हम नो ट्यूशन फी करेंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपके सामने आ रही होंगी वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होंगी, इनकी ट्यूशन फी नहीं होगी। और यहाँ से आपने अपना चूज कर लेना है कि आप किस इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो। सपोज आप विंटर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो आपके पास ये सारी यूनिवर्सिटी वो आ जाएंगी जिनमें आप विंटर इनटेक में अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपने जाना है, हर पहली यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं। तो आपने इस तरह से कोर्स की डिटेल्स पढ़ लेनी है, और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स में चले जाना है। तो रिक्वायरमेंट्स में सब कुछ लिखा होगा, लाइक आईएलटीएस कितना चाहिए आपको, आईएलटीएस दे सकते हो या टॉफल दे सकते हो। टॉफल भी एक इंग्लिश का मतलब टेस्ट है जो आप दे सकते हो। और इसमें यहाँ भी बोला हुआ है कि आपको जर्मन नहीं चाहिए, अपने कोर्सेज वो सिलेक्ट करने हैं जिनमें जर्मन ना चाहिए हो। लाइक बहुत से कोर्सेज होंगे, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब करनी है। मतलब इसकी जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब होती हैं, विंटर में कब होती हैं, समर में कब स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है। अप्लाई आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके करना है, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस की वेबसाइट पे जाके। तो इस तरह आपने यहाँ से यूनिवर्सिटीज अपनी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है जिनका जीपीए 3 के राउंड अबाउट है, लाइक 3.1, 2.8, 2.9 या 3 के राउंड अबाउट है। तो मेरी ये सजेशन है कि आपको कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। लाइक कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, मैकबर्ग यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है। तो आपने कोर्स की डिटेल्स देख लेनी है, रिक्वायरमेंट्स में चले जाना है। अब रिक्वायरमेंट्स में जनरल रिक्वायरमेंट एसपीटी करो तो आप इनके पेज पे चले जाओगे जो यूनिवर्सिटी का पेज होगा। तो वहां से आप जनरल रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो। अब यहाँ पे इसने मांगा हुआ है कि 6 पॉइंट्स आइल्स की होने चाहिए, और आपके पास बस यही है, मतलब B2। मैंने आपको पहले भी बताया कि 5.5 से 6.5 के अंदर जो आइल्स स्कोर होता है वो B2 कंसिडर किया जाता है। तो आपने एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करवानी है, बोला हुआ है आपने सबमिट करवानी है यूनी असिस्ट में। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि यूनी असिस्ट क्या है। एप्लीकेशन आपने इधर सबमिट करवानी है। तो यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है। एक एक्सेल शीट बना देनी है आपने 10 से 15 यूनिवर्सिटी जो आपके लिए एलिजिबल हो, मतलब जिनमें आप एलिजिबल हो अप्लाई करने। आपने जो कोर्सेज आपको पसंद हो और जिन CGPA मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक यहाँ पे I6 लिखा है और आपका 5.5 है, तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप जिनके लिए एलिजिबल हो आपको उन कोर्सेज में यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। लाइक
अब मैंने इलेक्ट्रिकल लिखा है तो 12 पेजेस आ गए, जिनमें सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में। और मोस्टली जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो उनके सिटी के नाम पे होती हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन अगर, तो ये सीगन जो है ये बेसिकली सिटी का नाम है। इसी तरह ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टॉक, तो रॉस्टॉक सिटी का नाम है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी जो सी होंगी वो सिटी के नाम पे होंगी। लाइक ये देख लें यूनिवर्सिटी ऑफ कैसल है तो कैसल सिटी का नाम है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एनहाल्ट है तो एनहाल्ट भी सिटी का नाम है। तो इस तरह आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है अपने मुताबिक जो आपकी प्रोफाइल होगी। तो एलिजिबिलिटी चेक होगी, यूनिवर्सिटी शॉर्टेज होंगी। इसके बाद आपने थर्ड प्रोसेस पे जाना है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देखनी है आपने कि आपकी, आप उनकी जो यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मांगी है तो आप उनके लिए एलिजिबल हो नहीं हो। लाइक उसने अगर आप 6.5 मांगा है तो आपके पास 6.5 है या नहीं है, तो आपने अपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को भी देख लेना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। लैंग्वेज आपने उन्हीं कोर्सेज में सिर्फ अप्लाई करना है जिनमें सिर्फ उससे इंग्लिश मांगा हो, जिसमें जर्मन कोर्सेज फुल इंग्लिश होंगे, मतलब वहाँ पे आपको कोर्स तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो मतलब कोर्स इंग्लिश होता है लेकिन फिर भी वो कहती है कि आपके पास मिनिमम कुछ ना कुछ जर्मन, कुछ ना कुछ आना चाहिए। मिनिमम मतलब A1 A2 आना चाहिए। A1 A2 भी सिंपल होता है, वो कैबलरी होती है जर्मन की, वो आपको आनी चाहिए। तो आप उन्हें कोशिश ये करनी है कि वो यूनिवर्सिटी हो जिसमें सिर्फ IELTS की रिक्वायरमेंट हो, जर्मन की रिक्वायरमेंट ना हो। उन कोर्सेज में आपने अप्लाई करना है। तो आपने अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। तो आफ्टर चेकिंग योर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यू विल प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। योर फोर्थ स्टेप इज यू विल प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, नीचे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है। और किस किस्म की अटेस्टेशन चाहिए होती है पाकिस्तान से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये करने के बाद अब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई होता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो। तो यूटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ई कैट दिया होगा, अप्लाई तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके किया था जब आपने एडमिशन लिया था। तो जर्मनी में भी इसी तरह है। एक तो ये प्रोसेस है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो, और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप यूनियसिस से भी अप्लाई कर सकते हो। यूनियसिस में बताता हूँ आपको क्या है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई क्या करोगे, स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे। सपोज है यूनिवर्सिटी ऑफ मैकबर्ग है, आप मैकबर्ग की यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दोगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, वो आप डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करोगे, अप्लाई कर दोगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको यूनियसिस के थ्रू अप्लाई करना है। अब जो पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो वो टोटली फ्री है, उसमें कोई फी नहीं है। लाइक इट्स टोटली फ्री, आप बस अप्लाई करोगे, कोई फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो यूनियसिस के थ्रू अप्लाई करना है उसमें फी होती है यूनियसिस की। लाइक अगर आप पहली एप्लीकेशन किसी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे हो तो 75 यूरो फी होती है। इसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उसमें 30 यूरो होती है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी 75 यूरो, उसके बाद 30 यूरो। यूनियसिस की बेसिकली ये वेबसाइट है। आप सिंपली जाके यूनियसिस लिखोगे तो आपके पास ये पेज सामने आ जाएगा यूनियसिस का। यहाँ पे माई असिस्ट पे जाओगे तो आप अपना यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। लाइक मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मेरा यहाँ पे लॉग इन है। यहाँ पे चले जाना है, यहाँ से आपने सर्च पे जाना है, सर्च शेयर। यहाँ से आपने यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट किया होगा, तो वहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स को देख लोगे कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनियसिस मांग रही है। मतलब कह रही है कि आप मेरी एप्लीकेशन यूनियसिस के थ्रू अप्लाई करो। यूनियसिस बेसिकली यूनिवर्सिटियों को असिस्ट करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। लाइक जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है यूनिवर्सिटी की वो यूनियसिस चेक करता है। वो चेक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी को सेंड कर देता है, और आपको एक मतलब एक PDF फाइल देता है जिसमें लिखा होता है कि आप एलिजिबल हो और आपके डॉक्यूमेंट्स हमने भेज दिए हैं। लाइक अगर आप मेरे इनबॉक्स में जो यहाँ पे काफी मुझे डॉक्यूमेंट्स आए होंगे जिनमें जिन यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था उन यूनिवर्सिटियों के मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं। आप सिंपली यहाँ पे सर्च पे जाओगे, सर्च पे जाओगे, यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लोगे। लाइक मेरे को बर्लिन की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टाइप ऑफ डिग्री सिंपली और आप सर्च पे दोगे तो आपके पास बर्लिन के जितने भी यूनिवर्सिटीज में कोर्स अवेलेबल है वो आपके पास सामने आ जाएंगे। लाइक इसमें सिर्फ ये दो कोर्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सिंपल सपोज हमने आपने इस कोर्स में अप्लाई करना है। आप इसको सिलेक्ट करोगे, जब आप सिलेक्ट करोगे आपके यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अपने अपनी डिग्री वगैरह अपलोड करनी होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे सिंपली जाके ये देखें, जब हमने अपलोड किया यहाँ पे कह रहा है जी आपने 75 यूरो फी पे करनी है। इसकी पे करने के बाद चूज पेमेंट मेथड करोगे, आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को चली जाएगी। तो यूनिवर्सिटी उसको देखेगा, यूनिवर्सिटी में 15 से 20 डेज लेता है चेक करने में आपकी एप्लीकेशन को।
वो चेक करता है, वो चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड कर देता है। अगर आप माई डॉक्यूमेंट में जाओ, माई अकाउंट में इधर आई थिंक इनबॉक्स में होगा, ये माई एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट, लाइक ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, जो आप मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करवाई थी, तो मैंने यहाँ पे जो 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 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो मैंने अपलोड किए थे। तो आपने यहाँ पे यूनिसिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स में सारे अपलोड करने हैं। लाइक यहाँ से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आपने, लाइक सपोज ये सेलेक्ट करना है, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लाइक ये डॉक्यूमेंट है क्या, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, लेटर ऑफ मोटिवेशन है, क्या है, पासपोर्ट है, जो भी चीज़ है सेलेक्ट करनी है और आपने अपलोड पे क्लिक करना है तो वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अपलोड करके फी पे करके आपने यूनिवर्सिटीज को के थ्रू अप्लाई कर देना है। तो ये दो तरीके हैं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के, एक तो पोर्टल पे और एक यूनिवर्सिटीज पे। जिन लोगों का जीपीए 3.5 से ऊपर है उनको तो मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो जिनका पोर्टल पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि आपकी फी ना लगे तो अच्छी बात है। तो और जिनका जीपीए 3.4 3.5 से इस 3.5 से नीचे नीचे है, तो उनको चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी कुछ एप्लीकेशन को सबमिट करें। कुछ यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी अप्लाई करें और कुछ यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई करें, तो दोनों बेहतर रहेगा। तो ये दो तरीके अप्लाई करने के, एक पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है और एक आपने यूनिवर्सिटी पे जाके अप्लाई करना है। एक आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी देखने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज देगा, आपकी सारी रिपोर्ट। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे, सपोज यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था तो एक एक कोर्स के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, असल में वहाँ पे मैं देख नहीं सकता था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं एलिजिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। लाइक ये देखें, जब अभी एप्लीकेशन चली जाती है आगे तो वहाँ पे ओके लिखा हुआ आ जाता है। जब आपकी एप्लीकेशन 15 से 20 डेज यूनिवर्सिटी लेता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को भेज देता है, तो आपका ये सिंबल पहले यहाँ पे लिखा होता है, इन एवेल्युएशन लिखा होता है जब अप्लाई करते हो। जब यूनिवर्सिटी को चले जाते हैं तो यहाँ पे ओके लिखा आ जाता है। ओके का मतलब आप एलिजिबल हो और आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया था, ये ये यूनिवर्सिटी में थी, इसमें मेरा सीजीपीए जितना इन्होंने मांगा था मेरा नहीं था, तो इन्होंने मेरी एप्लीकेशन को यहीं पे फॉल्टी कर दिया था, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी को भेजी नहीं थी कि आप एलिजिबल नहीं। तो आप जो जो मैंने फी यहाँ पे पे की थी इनको, वो फी भी मेरी जाया होगी थी। तो आपने पहले सबसे पहले देखना है कि आप एलिजिबल हो उस यूनिवर्सिटी के लिए, जो उसने सीजीपीए मांग रहा है, जो उसने आईएलटीएस मांग रहा है, वो आपके पास है उतना, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटी के थ्रू, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको फी देनी पड़ेगी। तो इस तरह आपने अप्लाई कर लेना यूनिवर्सिटी के थ्रू या पोर्टल के थ्रू। अप्लाई करने के बाद फिर बेसिकली एक तरीका तो ये है कि आपने पोर्टल पे अप्लाई करना है, दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है, तीसरा तरीका बेसिकली होता है, इसको कहते हैं वीपीडी। वीपीडी भी बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी से लेनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने अप्लाई तो पोर्टल पे ही करना है, लेकिन आप एक डॉक्यूमेंट है इसको वीपीडी कहते हैं, वो आप यूनिवर्सिटी से लेके आओ। वो डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, वो आपका पाकिस्तानी ग्रेड जो है वो जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट होता है। तो वो एक कन्वर्जन जो है यूनिवर्सिटी करके आपको देता है, वो आपको वाला कन्वर्जन का जो पीडीएफ फाइल होता है वो आपने पोर्टल पे अपलोड करना होता है यूनिवर्सिटी के। तो थर्ड तरीका ये है। इसको भी अप्लाई करने का यही है कि वहां से आप सिलेक्ट करोगे जो जिस कोर्स में अप्लाई करना है आपने, यूनिवर्सिटी चेक करोगे, कोर्स सिलेक्ट करोगे, उसमें अप्लाई कर दोगे, तो 15 से 20 दिन के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट रिसीव होगा, उसको वीपीडी एवेलुएशन रिपोर्ट भी कहते हैं, वीपीडी भी कहते हैं। तो आपने वहां से डाउनलोड करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ये नीचे देखिए लिखा हुआ भी है, अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी से वीपीडी के लिए, और जब आपको वीपीडी मिलेगी तो आपने सीधा वीपीडी लेके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वीपीडी अपलोड कर देनी है। तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाइक 5 से 10% यूनिवर्सिटीज होती हैं जो वीपीडी मांगती हैं। मेजरली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के थ्रू और पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपने फिर देखना है कि जब आपको एडमिशन आ जाएगा, सपोज आपने 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपको एडमिशन 4 से 5 यूनिवर्सिटियों में आ गया, फिर आपने चूज करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। चूज आपने इस तरह करनी है कि उसकी लोकेशन अच्छी हो, वहाँ पे जॉब सिचुएशन अच्छी हो। डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जर्मनी के स्टडी ग्रुप्स, आप उन ग्रुप्स में जाकर उस यूनिवर्सिटी के बारे में, डिफरेंट वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो जर्मनी में बैठे हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हो यार मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो इस यूनिवर्सिटी में जॉब की सिचुएशन क्या है, लोकेशन कैसी है, और कोशिश करें एक बड़ा सिटी हो, जॉब सिचुएशन वहाँ पे अच्छी हो, और उस सिटीज में आपको मूव करना चाहिए, मतलब उस सिटीज का एडमिशन लेटर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट, अगर आपके पास तो एडमिशन लेटर ही एक है फिर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास 5 या 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन लेटर आ जाते हैं, उनमें से आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसकी अच्छी रैंकिंग हो, जिसमें जिसका कोर्स आपको ज्यादा पसंद हो, और जिसकी जॉब सिचुएशन वहाँ की जॉब, क्योंकि जाके वहाँ पे जाके सही बात है, वीक के अंदर 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, जॉब जॉब आप कर सकते हो। वन एक दिन के अंदर 4 घंटे और 5 दिन
के अंदर 20 घंटे, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 20 घंटे आपको अलाउ होता है, आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हो। तो आपने कोशिश करना है कि वही सिटी सिलेक्ट करना है जहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल हो, और जहाँ जो यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो, कोर्स भी आपको पसंद हो, तो आपने बस सेलेक्ट कर लेना है वो वाला एडमिशन लेटर, जो आपको जो वो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मुझे 4 से 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आया था, और मैंने FAU और लंदन सेलेक्ट की, क्योंकि वो एक तो शहर बड़ा है और यूनिवर्सिटी अच्छी है, और कोर्स भी मेरे पसंद का था जिसमें मुझे एडमिशन मिला था। तो अब इन्हें इस तरह एडमिशन जो आएगा आपको उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने, जब ये सारा आपके पास एडमिशन आ जाएगा, इसके बाद आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है? बेसिकली 2 इंटेक्स हैं, विंटर इंटेक और समर इंटेक। हर इंटेक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो एम्बेसी पहले अपनी वेबसाइट पे बताती है कि आपकी सपोज विंटर इंटेक की अपॉइंटमेंट्स मेजरली ओपन होती हैं अप्रैल में। लाइक मार्च में आप एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हो अपनी, सॉरी मई में, मार्च में अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो मई में आपकी अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं। अब ये नहीं होता कि आप किसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपको बताती है कि इस दिन अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी। लाइक वो बता देते हैं इस समय अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी 21 मई को, वो आपको बता देंगे 21 मई को अपॉइंटमेंट ओपन होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किस टाइम ओपन होगी। लाइक आपको 24 और वेबसाइट पे बैठना होता है, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे। तो जब भी ओपन होती है तो आपने उसी टाइम विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और कोशिश करना होता है कि पहले 1000 या 15 बच्चों में आपको होना चाहिए। इतनी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएगी, और आपको मतलब जल्दी आप वीजा इंटरव्यू के लिए आपको वो बुला लेंगे। फिर आपको मेल आती है कि आपकी, जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स में आपका बेसिकली नंबर लिखा होता है कि आपका क्या नंबर है। लाइक अगर आखिरी 4 डिजिट हो 1600, तो आप मतलब आप 1600 नंबर पे हो, और आपसे ऊपर 1599 बचे, तो इस तरह होता है। तो आपको वो 30 वाइज मतलब रेफरेंस बेस्ड बच्चों को ईमेल करके बुलाया जाता है। तो आपने इस तरह एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके वो कर लेना है, ये एम्बेसी की वेबसाइट है। आपने सिंपल जर्मन एम्बेसी लिखना है, तो आपके सामने आ जाएगी वो। ये ये वाला पेज आएगा जिसमें जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और विद इन सेकंड्स आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है जब ओपन होगी। ईमेल होता है। उसके अलावा मेन चीज होती है जहाँ पे वीजा कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपने विंटर इनटेक या समर इनटेक में अप्लाई किया है स्टडी वीजा के लिए, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट जाके। इस तरह आपने अपनी बुक कर लेनी है अपॉइंटमेंट जर्मन एम्बेसी की। जो विंटर इनटेक की अपॉइंटमेंट है वो मई में ओपन होती है, और जो समर इनटेक की अपॉइंटमेंट है वो नवंबर में ओपन होती है। लाइक अभी समर इनटेक चल रहा है तो नवंबर में अपॉइंटमेंट ओपन होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा वो नवंबर में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और अपना वीजा इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद अपने आपने कंप्लीट वीजा रिक्वायरमेंट्स को देखना है। वीजा रिक्वायरमेंट्स आगे आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है। मतलब वीजा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये करना है। और इसके बाद आपने करना है वीजा इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। वीजा इंटरव्यू में सिंपल सवाल होते हैं कि वाई जर्मनी, वाई जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो कोर्स क्यों, आप उस कोर्स में क्यों एडमिशन लिया, तो आपने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया। इस तरह के वीजा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है वहाँ पे वीजा इंटरव्यू में। ये मेन स्टेप्स हैं आपके एप्लीकेशन के। इसके बाद आप देख लें कि आइडियल टाइम क्या है अप्लाई करने का। सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे हो विंटर टेक में, विंटर इंटेक में अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में। तो आपको उससे पहले ही आप एलिजिबिलिटी चेक कर लो, अपना शॉर्ट लिस्ट कर लो यूनिवर्सिटीज को। तो जब मार्च अप्रैल में एडमिशन ओपन हो तो आपको फौरन जल्दी से अप्लाई वहाँ पे करना होता है। तो आप विद इन टाइम वहाँ पे अप्लाई कर दो। मेजरली 2 से 3 मंथ्स ओपन रहती हैं एप्लीकेशन, आप उसमें किसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी अप्लाई करो उतना जल्दी अच्छा है। तो आपने ये टाइमलाइन देख लेनी है कि दिसंबर में एलिजिबिलिटी चेक कर लो। इस तरह ये टाइमलाइन बनी हुई है, तो आपने इसको देख लेना है। इसी तरह समर इनटेक में भी आपने अपना देख लेना है कि जून जुलाई में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, और अगस्त में अपना जो लेटर ऑफ मोटिवेशन उसे भी बना लेना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन में मैं बताता हूँ क्या होता है। और इस तरह आपने सितंबर में और सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन को अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। और नवंबर में क्या, नवंबर में जो है वो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाती है। नवंबर में एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इस तरह ये सारा लिखा हुआ है कि फिर दिसंबर में अपना एडमिशन लेटर आपके पास, उससे पहले या उससे बाद में आपके पास एडमिशन लेटर, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होगे उस वक्त आपके पास एडमिशन लेटर है या नहीं है। नहीं है तब भी बुक कर सकते हो, है तब भी बुक कर सकते हो, क्योंकि जब आप बुक करोगे तो आपकी 2 से 3 मंथ लग जाते हैं आपकी अपॉइंटमेंट आने में, 4 मंथ लग जाते हैं अपॉइंटमेंट आने में। कहीं ऐसा भी होता है अगर आपकी अपॉइंटमेंट बहुत लेट है तो अपॉइंटमेंट आपकी आती नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट 1000 से 15
1,000 से 1,500 बच्चों में हो, 1,000 से 1,500 बच्चा हर इनटेक में जाता है। लाइक समर इनटेक में भी 1,000 से 1,500 बच्चा जाता है और विंटर इनटेक में जाता है। जो स्टूडेंट्स पहले 1,500 बच्चों में होते हैं वो उनका एडमिशन, उनकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। जो उससे लेट होते हैं उनकी जरा 50-50 होता है, क्योंकि तब मई में अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई है विंटर इनटेक की, साथ ही नवंबर में आगे समर इनटेक की ओपन हो गया। बीच में ये 4 मंथ होते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट्स आती हैं। अगली जब नवंबर आएगा तो समर इनटेक की स्टार्ट हो जाएगी। तो इस 4 मंथ में जितने बच्चों को फैसिलिटेट कर सकती है एम्बेसी उनको वो करती है। इसके बाद आप देखें कि There is an इन लोगों announcement. का जीपीए लो है। यस सर। Siptan bhai, there is an announcement. The Google survey form is in the chat box for e-certificate. It is active for only 10 minutes. Thank you. इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जीपीए 2.7 से भी कम है, तो उनको वो किस तरह अपना प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हैं वो। सबसे पहले तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज को या ऐसी सिटीज को फोकस करें जो स्मॉल सिटीज हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया, जो यूनिवर्सिटीज के नाम पे, जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो बेसिकली सिटी का नाम है, सिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो आपको वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए जो स्मॉल सिटीज में है। इसके अलावा आपको वो कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। नॉन रिस्ट्रिक्टेड वो कोर्सेज होते हैं जिनकी खास सीट्स नहीं होती। लाइक उसमें ये नहीं होता कि ये कोर्स है तो ये इस कोर्स में 50 बच्चे उन्होंने रखने हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टेड में ये होता है कि उस कोर्स में जितने भी बच्चे एलिजिबल होंगे उन सबको वो रख लेंगे। मतलब अगर 100-150 बच्चे अभी वो रखेंगे तो एलिजिबल बच्चा होगा उसको रख लेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज में अप्लाई करना। और जब आप अप्लाई करोगे वहाँ पे लिखा होगा कि ये कोर्स जो है वो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप यूनिवर्सिटी पे जाओ तो ये देखो ये एनसी लिखा हुआ है, मतलब ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड कोर्स है जिसमें मैंने अप्लाई किया था। तो इस तरह आपने कोर्स वो सेलेक्ट करने हैं जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, वो कोर्स सेलेक्ट करने हैं, सिटी स्मॉल सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा आपने 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में मिनिमम में अप्लाई करना है। अगर आपका जीपीए कम है, अच्छा जीपीए तो 5-6 में भी अप्लाई करो तो आपको एडमिशन एडमिशन तो एक चाहिए, एक ही यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। तो अगर आपका जीपी कम है तो आपको 10 से 15 में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आजकल जर्मनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जर्मनी के जो एडमिशन क्राइटेरिया वो बहुत टफ है। तो आपको 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में मिनिमम 10 से 15 में अप्लाई करना चाहिए जिनका जीपी 3 से कम है। इसके अलावा आपको अप्लाई अर्ली करना चाहिए। सपोज अगर यूनिवर्सिटी का एडमिशन 15 अप्रैल को ओपन हो गया तो आपको विद इन मंथ ही उसी मंथ ही अप्लाई करना चाहिए। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन आने के। कुछ एक मेरे साथ एक स्टूडेंट था, उसका जीपीए 3.5 या 3.6 था, लेकिन उसने अप्लाई लेट किया था तो उसको एडमिशन नहीं आया था, रिजेक्शन आई थी क्योंकि उसने मतलब उसकी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है वो क्लोज होने वाला था, उससे 2 दिन पहले उसने अप्लाई किया था। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपको आपने अप्लाई अर्ली करना है। इसके अलावा आपने अपना आईएलटीएस का स्कोर आप कोशिश करेंगे 6.5 से ऊपर हो, 6 या 6.5 से। 6.5 भी हो तो अच्छा है, इससे ऊपर 7.5 हो तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा आपने लेटर मोटिवेशन बनाना है, वो आपने बहुत अच्छा बनाना है। लेटर मोटिवेशन में बेसिकली आपने लिखना होता है कि आपकी डिग्री किस में है, आपने क्या कोर्सेज पढ़े हैं, और आपने लेटर मोटिवेशन उस कोर्स के मुताबिक बनाना होता है, इस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन में अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, इस तरह के कोर्सेज और इस तरह कोर्सेज जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो इनको ज्यादा लिखते हैं उस लेटर मोटिवेशन में। लेटर मोटिवेशन 1 से 1.5 पेज का इनफ होता है, 1 to 1.5 पेज इनफ होता है। तो आपने कोशिश करना है कि आपका लेटर मोटिवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई जॉब है या कोई इंटर्नशिप है, उसके मतलब ज्यादा से ज्यादा जॉब या इंटर्नशिप आपके पास होंगी तो आपकी प्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आप जर्मन भी सीख सकते हैं। जर्मन कहाँ से सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जर्मन A1 A2 सीख लो, कोई A1 A2 बेसिक होता है तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे एडमिशन आने के। B1 B2 पे भी जा सकते हो, लेकिन B1 B2 कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं B1 और B2 करने में। A1 और A2 आप 3 से 4 मंथ्स में कर सकते हो। तो जितना ज्यादा हायर लेवल पे करोगे, जितना हाई लेवल जर्मन सीखोगे उतना आपके लिए बेटर है। लो अगर आपका लो सीजीपी है, जर्मन रिक्वायर्ड नहीं होता, आपका कोर्स फुली इंग्लिश में होगा, लेकिन आप जर्मन सीखोगे तो यूनिवर्सिटी को ये लगेगा कि यार ये बच्चा जो है ज्यादा फोकस्ड है जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको ज्यादा प्रियोरिटी देंगे। और आपको क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे वो पूछता है कि आपके पास कोई और लैंग्वेज कोर्स है। आइट्स का तो पूछेगा, लेकिन वो पूछता है कि आपके पास इसके अलावा कोई और ऐसी लैंग्वेज है जो आपको आती है तो उसमें आप इंटर कर सकते हो, तो आपकी प्रोफाइल को मजीद अच्छा करता है। अब जर्मन आप कहाँ से सीख सकते हो, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट है। एक गोथे का इंस्टीट्यूट है कराची में, इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, इसका कैंपस है रावलपिंडी में भी है। इसके अलावा एक और ये लाहौर का इंस्टीट्यूट है, जर्मन में नाम है इसका, इसका मुझे भी नहीं आइडिया। इधर से आप अपनी जर्मन का कोर्स कर सकते हो। A1 करो, A2 करो, B1 करो, B2 करो।
तो आप यहाँ से जर्मन स्कूल से अपनी जर्मन सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो। अगर आपकी प्रोफाइल लो है तो जर्मन वैसे भी सीख लो, अच्छी बात है। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, लैंग्वेज बंदे को आनी चाहिए। इसके अलावा आपको पहला तरीका तो ये है कि आप इनसे सीख लो, इनफोसिस इन इंस्टीट्यूट्स में जाके। दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीख सकते हो। ये जो जर्मन टीचर के नाम पे एक चैनल है, एक लर्न जर्मन के नाम पे चैनल है, इसी तरह एक ये देसी लर्न जर्मन के नाम पे चैनल है। इन चैनल से भी आप जाके जर्मन सीख सकते हो। ये डिटेल्ड में इनकी प्लेलिस्ट है जर्मन A1 A2 B1 B2 की। आप यहाँ से भी अपना सीख सकते हो। यहाँ से सीखे तो आप अपनी जर्मन का फिर यहाँ से सीखने के बाद आपको जर्मन का टेस्ट देना होता है। वो गोते का टेस्ट होता है, उसमें आपने मतलब उसमें टेस्ट में सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर A1 का टेस्ट दे रहे हो तो A1 का तो सिंपल वोकैबुलरी का टेस्ट होता है, वो आपने पास करना होता है। फिर आपका ये हो जाता है कि आपने जर्मन A1 कर लिया। मतलब सीखते हो उसके बाद आपने गोइथे का टेस्ट देना होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है ये। जैसा आइल्स सीखती हो पहले और फिर आइल्स का टेस्ट देते हो, आइल्स की तैयारी करते हो फिर आइल्स का टेस्ट देते हो। इसी तरह जर्मन की तैयारी करोगे और फिर गोइथे का जर्मन का टेस्ट दोगे। जर्मनी वाले सिर्फ गोइथे की का जो इंस्टीट्यूट है उसी के सर्टिफिकेट को मानते हैं। मतलब आपने अगर गोइथे से सर्टिफिकेट लिया है A1 A2 B1 B2 का, तो वो आप जर्मनी में एलिजिबल, फिर आपको वो मतलब वही वहाँ पे रजिस्टर्ड है गोइथे का टेस्ट, गोइथे इंस्टीट्यूट का। तो सीख के आपने उसका टेस्ट देना है तो आप ये दे सकते हो। इसके अलावा आपने अगर आपके पास आपका जीपीए 3.7 से ऊपर है, 3.5 से भी ऊपर है, तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जर्मनी की, उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। उनमें बेसिकली एक ये दाद की स्कॉलरशिप है जो मेजरली काफी लोगों को पता होगा। एक ही स्कॉलरशिप है और एक ये एरस्मस की स्कॉलरशिप है, एरस्मस वो नीचे आई थी। दाद की स्कॉलरशिप में ये होता है कि एक तो आपका ये होता है कि आपका कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं होता। ब्लॉक अकाउंट में आपको बताता हूँ जब मैं नीचे वीजा की रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं होता और आपको 934 यूरो पर मंथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तो वैसे भी फी नहीं होती, जर्मन यूनिवर्सिटियों की, पब्लिक यूनिवर्सिटियों की कोई फी नहीं है, लेकिन आपको मंथली 934 यूरो दिया जाता है आपकी मंथली एक्सपेंसेस के लिए, लिविंग एक्सपेंस के लिए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल टिकट सब कुछ दाद की तरफ से दिया जाता है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपकी जर्मन लैंग्वेज B2 होनी चाहिए, आईएलटीएस B2 होना चाहिए। इसके अलावा आपका जीपीए 3.3 से 3.4 से ऊपर ही होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी डिग्री में जो आपने डिग्री की। सपोज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा आपका बैचलर्स डिग्री जो है वो 6 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने रिसेंटली डिग्री की वो 6 साल से पुरानी ना हो। और इस टाइम आप किसी कंपनी में या किसी प्राइवेट या पब्लिक में कर भी जॉब भी कर रहे हो। तो ये एलिजिबिलिटीज है दाद की। और दाद में भी अप्लाई करने का, स्कॉलरशिप अप्लाई करने का वही है जो दाद की वेबसाइट है ये वाली, इसी में जाके अप्लाई होता है दाद का भी। आप यहाँ पे जाके स्कॉलरशिप के भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है, और बेसिकली जो दाद की फील्ड्स हैं स्कॉलरशिप की, वो ये सारी फील्ड्स हैं। मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो आप इसको काइंडली रीड कर लेना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इन फील्ड में आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। लाइक अपनी एडमिशन यूनिवर्सिटी से लेना होता है। जब आप यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हो तो यूनिवर्सिटी आपकी दाद वालों को बताती है कि ये बच्चा जो उनसे ये एलिजिबल है, तो आप काइंडली इसको स्कॉलरशिप दो। यूनिवर्सिटी दाद को बताती है, फिर दाद वाले आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। दूसरी जो है वो एरasmus मुंदस की स्कॉलरशिप है। और इसमें आपको 1400 यूरो पर मंथ दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस की होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस की होती है, कोई ट्यूशन फी नहीं होती। और इसमें भी जीपीए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अलावा मिनिमम 16 ईयर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आइल्स की भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्क वीजा की भी, वर्क एक्सपीरियंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसमें भी हाई प्रोफाइल वाले लोगों को ये भी कोई मिलती है। लाइक उनका 3.3 3.4 से अबव होता है, उनको ही मिलती है। और ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके अलावा ये जो मोहम्मद उमैर खान है जिनकी ये पीडीएफ फाइल है, आप इनके चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। इन्होंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि एरasmus मुंदस की स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अब आप देखें यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी डिग्री चाहिए जिसमें आपकी बैचलर्स का डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है। इसके अलावा आपको मैट्रिक और इंटर का भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लाइक आपकी एफएससी और मैट्रिक। इसके अलावा पासपोर्ट है, आपका आइल सर्टिफिकेट है। इसके अलावा एक सीवी होनी चाहिए। सीवी आपकी यूरोपास सीवी होनी चाहिए। लाइक आप आपने सीवी जो बनानी है वो यूरोपास सीवी बनानी है। एक यूरोपास के नाम से वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी सीवी क्रिएट करनी है।
आपकी सीवी यूरो पास सीवी होनी चाहिए अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, फिनलैंड, जर्मनी। इसके अलावा आपके पास कोई इंटर्नशिप या कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं, कोई इंटर्नशिप्स आपने की हुई हैं, कोई कोर्सेरा की कुछ है तो वो अपलोड कर सकते हो। लेटर मोटिवेशन 1 से 1.5 पेज का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने किसी भी टीचर से बनवाने हैं जिन टीचर से आपने पढ़ा है, तो वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डिग्री जो है वो ऑप्शनल है, वो आपके पास हो ना हो कोई इशू नहीं है। तो ये चीजें जो उनसे हर यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है जो एप्लीकेशन के टाइम पे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। अब आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के। अब वीजा के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके बाद उस वक्त आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपने एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट होता है। एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपके पास एडमिशन लेटर होना लाजमी है। जब आप वीजा की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हो उस वक्त हो ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बुक कर लेते हो उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उसके बाद उस वक्त आपके पास एडमिशन लेटर होना लाजमी है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आप इसके बाद कंफर्मेशन ईमेल आपको जर्मन एम्बेसी ईमेल करती है कि आपका फलाने दिन इंटरव्यू है, तो वो आपके इनसे साथ लेके जाना होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपने सारे एकेडमिक के। इसके अलावा ब्लॉक अकाउंट, ये चीज है मैं आपको मैं बताता हूँ। ब्लॉक अकाउंट है जर्मनी के लिए, यूनिवर्सिटियों की तो कोई फी नहीं है, लेकिन आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना लाजमी है। 11,208 यूरो, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वीजा एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 11,208 यूरो का ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। ये आपने बेसिकली कोई भी अकाउंट खोलना है, कोरेकल का अकाउंट खोलो, पेंटबा का अकाउंट खोलो, जिस तरह पाकिस्तान में अकाउंट होते हैं यूबीएल का, एचपीएल का, इसी यूबी पाकिस्तान में बैंक होते हैं, तो वहाँ किसी भी बैंक का आप अकाउंट खोलो ऑनलाइन। अकाउंट खोलने के बाद आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, लाइक आपका उसमें आईबीएन नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है। उस अकाउंट नंबर पे आपने 11,208 यूरो सेंड करने होते हैं किसी भी बैंक से पाकिस्तान के। ये जो 11,208 यूरो होते हैं ये आपका लिविंग एक्सपेंस होता है जर्मनी का। लाइक ये 12 मंथ्स के अंदर आपको वापस मिल जाती है। हर मंथ आपको 930 से 940 यूरो मिलता है। लाइक मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब जिस बच्चे की स्कॉलरशिप लग जाती है उसको 930 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो जिस बच्चे ऊपर जॉब की स्कॉलरशिप में लिखा हुआ था, ये 934 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है इसको। लेकिन जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं लगती तो उन्होंने उन्होंने ब्लॉक अकाउंट लेके जाना होता है साथ। और इस ब्लॉक अकाउंट में 11,208 यूरो है, लेकिन अब आई थिंक इंक्रीज हो गए 11,800 यूरो तक चला गया। तो ये आपने उसमें रखना होता है और ये आपको हर मंथ 930 से 980 यूरो के अंदर आपको हर मंथ मिलता है वापस। लाइक ये ब्लॉक अकाउंट होता है, वहां जाके आप इस अकाउंट को ओपन करा लेते हो और आपको हर मंथ का 970-980 यूरो आपको वापस मिल जाता है। और 12 मंथ के अंदर आपको ये अमाउंट आपकी वापस आपको मिल जाती है। लाइक ये आपका लिविंग एक्सपेंस है और ये आपको वापस मिल जाएगा वहां जाके। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से है कि जो बच्चा यहाँ पे आए उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना लिविंग एक्सपेंस बर्दाश्त कर सके। लेकिन जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाता है वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है, वो अपना लिविंग एक्सपेंस वहां से निकाल लेता है, जो भी बच्चा जर्मनी जाता है। तो ये जो पैसे हैं उसको जो वापस मिलते हैं ये उसकी सेविंग है जो वहां जाके उसको सारी वापस मिल जाती है और वापस पाकिस्तान भेज सकता है। तो ये बेसिक कंफर्मेशन है कि बच्चे के पास इतना पैसा हो, बच्चा वहां जाके ये है कि जॉब से पीछे ना पड़ जाए, उसके बाद इतना पैसा हो कि वो अपना लिविंग एक्सपेंस बर्दाश्त कर सके। और ये फिक्स अमाउंट है जो हर मंथ आपको वापस मिलती है और 12 मंथ के अंदर ये पास पैसे आपको दोबारा वापस मिल जाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट भी है जब आपने वीजा बेसिकली जाना है वीजा इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास 11,208 आई थिंक आप 11,800 हो गया, तो ये आपके ब्लॉक अकाउंट में होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपने वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो एप्लीकेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ये चीजें हैं सारी जो आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह आपने जब वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है ये चीज आपके पास होंगी। वीजा इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस करेगा, जिस तरह मैंने आपसे आपको बताया कि जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, किस तरह की इस कोर्स में क्यों आप जाना चाहते हो, इस तरह के क्वेश्चंस करेगा और आपका विद इन 1 मंथ के अंदर आपका वीजा लग जाता है। इसके बाद आप कह के अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं है, सपोज किसी के पास 11,800 यूरो नहीं है, तो वो उससे वो क्या कर सकता है कि वो ब्लॉक अकाउंट ना दे। पहला चीज तो ये है कि उसको वो कुछ स्कॉलरशिप ले ले, दाद की स्कॉलरशिप या एसएस की स्कॉलरशिप, तो उसकी ब्लॉक अकाउंट खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें तो गवर्नमेंट आपको देती है 11,208 यूरो, 934 यूरो हर मंथ का देती है। अगर उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो 11,208 ही बन जाता है। इसके अलावा आप स्पॉन्सर लेटर बना सकते हो। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके रिलेटिव जर्मनी में है, तो वो स्पॉन्सर लेटर वहां से बना के भेज दे कि ये मेरा रिलेटिव है और मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि जब आएगा तो ये मेरे पास रहेगा और इसका जितना भी लिविंग एक्सपेंस है वो मैं बर्दाश्त करूंगा। तो वो आपको स्पॉन्सर लेटर भी वहां से बना के दे सकता है।
वो बेसिकली जिस सिटी में वो रह रहा है उस सिटी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाता है, सिटी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, और वहां से स्पॉन्सर लेटर बना के भेज देते हैं। तो जब आप जाते हो वैसे की इंटरव्यू के लिए, तो आपको ब्लॉक अकाउंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप स्पॉन्सर लेटर ले जाओ। इसके अलावा आप पीएचडी पेड प्रोग्राम्स में जा सकते हो, जो रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता। इसके अलावा वर्क वीजा पे चले जाओ तो कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता। लेकिन आप में से तो मेजरली लोग ऐसे हैं जो स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वर्क वीजा पे जाते हैं वो ब्लॉक अकाउंट नहीं लेके जाते। इसके अलावा कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, इसको एज बिल्डिंग कहते हैं आई थिंक। तो इससे भी लोग जाते हैं, 1 से 1.5 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग होती है आई थिंक, तो इससे भी लोग जाते हैं, इसमें भी नहीं चाहिए होता। इसके अलावा फैमिली रीयूनियन वीजा होता है। आप में से कुछ ऐसे लोग जिसके भाई बहन अम्मी अबू सऊदीया में है, तो वो आपको फैमिली फैमिली वीजा पे भी बुला सकते हैं, तो उसमें भी आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होती। तो ये 6 तरीके हैं जिनकी वजह से अगर इनमें से कोई भी एक पे आप करोगे तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। लाइक आप कोई स्कॉलरशिप ले हो, आप कोई स्पॉन्सर लेटर आप किसी से बनवा लो, कोई आपका रिलेटिव है, आप किसी पीएचडी प्रोग्राम पे जा रहे हो तो आपको कोई नहीं चाहिए। इसके अलावा आप वर्क वीजा पे जा रहे हो या वोकेशनल ट्रेनिंग पे जा रहे हो या फैमिली यूनियन वीजा पे जा रहे हो तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, आपके पास कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं है, आप तो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा 11,800 यूरो का, जो आपको 1 साल के अंदर वापस मिल जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। हर साल हर मंथ 980 यूरोज वापस आएंगे और साल के अंदर वो सारी अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगी। तो साल के अंदर जब वापस आए, आप बेशक आप वापस पाकिस्तान भेज दो या अपने पास रखने हैं अपने पास रख लो। तो बेसिकली वो अगर एक्सपेंडिचर्स को काउंट किया जाए, जैसे भी एक्सपेंसेस को काउंट किया जाए, तो उसमें आप इंक्लूड को ना करो तो बेहतर है, क्योंकि वो तो आप वो पैसे हैं जो आपको वापस मिल जाएंगे। तो एक्सपेंसेस में आपका ये है कि आप यूनिवर्सिटी में यूनियन असिस्टेंट अप्लाई कर रहे हो, उनमें कोई फी होगी। आइल्स कर रहे हो, आइल्स की फी आई थिंक 65,000 फी है, तो ये फी आपको देनी है। इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्ट करवाने हैं, उसमें अच्छी चीज से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। आईबीसीसी से करवा लो, मोफा से करा लो, जो मैं जर्मनी के लिए अच्छी चीज से हो तो एनफ है। आईबीसीसी से या मोफा से करवा लो तो वो वेल एंड गुड है, ना करवाओ तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छी चीज होना लाजमी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों अच्छी चीजें अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जब अटेस्ट कराओगे इसमें कुछ पैसे लग जाते हैं। तो आपका जब ब्लॉक अकाउंट को निकाल के जो आपका खर्चा है वो 4 से 5 लाख है टिकट को मिला के, अगर आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हो तो, अगर आपको वीजा मिल जाता है तो टोटली जो खर्चा है जर्मनी का वो 4 से 5 लाख है, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो और अगर आपको वीजा मिल जाता है तो। और वीजा जब आप वीजा के लिए जाते हो एम्बेसी में, तो उसकी भी कुछ फी होती है आई थिंक 20 से 25,000 के अंदर होती है, जो वीजा फी होती है वो आपको वीजा की तरह देनी होती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो ये तरीके थे जिनसे आप ब्लॉक अकाउंट को भी अवॉइड कर सकते थे। तो इसके अलावा कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब वो कुछ नीचे लिखे हुए हैं। तो ये मेन चीज थी। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं वो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी तरफ से यही सारा प्रोसेस था जर्मनी का। कोई इश्यूज है या कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप कंटिन्यू बता दीजिए। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an informative session. Now we are moving towards question answer session. एनीवन किसी का कोई अच्छा, क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। क्वेश्चन जिन्होंने करने हैं वो है या तो हैंड रेस करके बोल सकते हैं या वो चैट में भी टाइप कर सकते हैं। और एक कैफ की जो जैन पीडीएफ है ये ग्रुप में शेयर करा दें बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे इसको एक दफा रीड कर लें सारा प्रोसेस को, अगर वो इन फ्यूचर अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये पीडीएफ। हाँ, ये पीडीएफ ग्रुप में काइंडली शेयर कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ वेबिनार के बाद, और रिकॉर्डिंग भी हम लोग शेयर कर देंगे कुछ देर के बाद यूट्यूब पे अपलोड करके। और और एक क्वेश्चन था और एक लड़के का कि क्या हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग फीस होती है या वन टाइम फीस होती है यूनी असिस्ट पर। यूनियसिस पे अगर यूनियसिस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फी है। लाइक पहली यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे 75 यूरो देना पड़ेगा आपको। इसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करोगे उसका 30 यूरो होता है। पहले का 75, उसके बाद 30 होता है। तो इस तरह आपने फी को यूनियसिस के थ्रू देनी होती है। तो जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी होती है तो वो यूनियसिस के थ्रू अप्लाई नहीं करते, वो यूनिवर्सिटी पोर्टल वो वाली यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं जिनका पोर्टल पे अप्लाई हो, तो उन पोर्टल पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है। लेकिन अगर आप यूनियसिस के थ्रू अप्लाई करते हो तो हर एप्लीकेशन की फी है, तो वो आपको देना होता है, आपने ऑनलाइन पे करना होता है अपना कार्ड लगा के।
एनीवन एल्स इसको क्वेश्चन हो तो गांधी पूछ ले। एक और क्वेश्चन है, विच वन इज प्रेफर्ड, यूनी असिस्ट और पोर्टल? यूनी असिस्ट पे अप्लाई करना, असल में जिन जो बच्चों की प्रोफाइल अच्छी होती है तो वो अप्लाई करते हैं पोर्टल के थ्रू, लेकिन मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमें यूनी असिस्ट पे नहीं जाना पड़े। इस वजह से जो यूनिवर्सिटी यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन ले रही होती है उनमें रश कम होता है, लेकिन उनमें कम बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों का जीपीए लो है तो उनको तो चाहे उनको लाजमी यूनिवर्सिटीज के थ्रू 3-4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटीज के थ्रू। लेकिन जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, लाइक जिनका जीपीए 3.3 से ऊपर ऊपर है, तो वो बेशक यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई ना करें, वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जिनका पोर्टल के थ्रू अप्लाई होता है। तो यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई करोगे तो एडमिशन आने के ज्यादा चांसेस हैं, लाइक उनमें एप्लीकेशन कम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से लोग जर्मनी जा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज का ये फायदा है कि उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका ज्यादा चांस होगा एडमिशन आने का। तो आई रिकमेंड जिनका जीपीए 3 से अप डाउन है या 3 से थोड़ा नीचे है तो उनको यूनिवर्सिटी के थ्रू लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा सत्येंद्र भाई, मेरा एक था जनरल सा क्वेश्चन कि जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो आप जी उसका जी। कोई पैटर्न है या कोई इसके लिहाज से गाइडेंस कर सकते हैं या अपना शेयर कर सकें अगर हम लोगों के साथ, ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरह मैं से आपको, उसको। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। मैं आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन अपना दिखा देता हूँ। लाइक ये मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन था, मैंने टीयू ड्रेसडेन में अप्लाई किया था। तो इस तरह आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है। ये देखिए मेरा 1.5 पेज का भी नहीं है, 1 पेज का है। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन, पहले एक पैराग्राफ में 6 to 7 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, लाइक आपका नाम, आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो, आपकी इस कोर्स में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, इस तरह लिख लेना है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा इसमें आपने अपनी डिग्री के बारे में, तो आपने उस कोर्स से रिलेटेड पढ़ा है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में अप्लाई कर रहे हो या अगर आप सपोज मशीन लर्निंग के किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपने जो कोर्सेज पढ़े हैं या उससे रिलेटेड आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप सेकंड पैराग्राफ में वो लिख सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक किसी सोसाइटीज में थे या इस तरह का काम किया है वो उसमें लिख सकते हो थर्ड पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि आप इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हो, मतलब उस कोर्स में ऐसा क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके बारे में आपने फोर्थ पैराग्राफ में लिखना है। लाइक इस कोर्स में मैं क्यों आना चाह रहा हूँ, उसमें आप ये लिख सकते हो कि ये कोर्स मेरा बैचलर से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड मैंने काफी सब्जेक्ट्स अपने बैचलर्स में पढ़े हुए हैं, काफी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और काफी इंटरेस्ट है मेरा इस कोर्स में, तो इस वजह से मैं इस कोर्स में आना चाहता हूँ। तो फोर्थ पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हो। और फिफ्थ पैराग्राफ आप लिखना चाहो तो एक कंक्लूजन पार्ट, इस तरह आप इससे अच्छा भी लिख सकते हो। लाइक ये एक नॉर्मल है, इससे अच्छा भी लोग लिखते हैं और इससे मिनिमम भी लोग लिखते हैं, तो ये कोई खास क्राइटेरिया नहीं है ऐसा लिखने का। लेकिन कोशिश ये करें कि 1.5 पेज का हो और 2 पेज से ऊपर ना जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ये मेन चीज होती है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जीपीए 2.7 से भी कम होता है लेकिन उनका लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उन्होंने बहुत ज्यादा, उनके पास एक्सपीरियंस होता है फील्ड का, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स की होती हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए होते हैं। तो 2.7 सी जीपीए को भी कंपनसेट किया जा सकता है अगर आपका जी अगर आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा लिखा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में या आपने जो कोर्सेज पढ़े हैं उस कोर्स से रिलेटेड लिखने हैं जो आप जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। लाइक मैं टीयू ड्रिस्टन में अप्लाई कर रहा था किस कोर्स में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में अप्लाई कर रहा था, तो मैंने उससे रिलेटेड लिखा था इसमें सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में कुछ सोसाइटीज में आप रहे हो तो उसके बारे में लिख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। फोर्थ पैराग्राफ में कि आपने उस कोर्स के ना की वेबसाइट पे जाके उस कोर्स की एक मॉड्यूल बुक होती है, हर कोर्स की मॉड्यूल बुक हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड होती है। आपने जरा मॉड्यूल बुक को पढ़ लेना है कि यार इस कोर्स में क्या क्या हमें पढ़ाएंगे वहां जाके, उससे रिलेट करके आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो फोर्थ पैराग्राफ में उस तरह वो लिख लो आप। तो फिफ्थ पैराग्राफ को आप ना उसको कंक्लूड कर दो, इस तरह आप एक अच्छा लेटर मोटिवेशन लिख सकते हैं। और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए लाजमी होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो चाहे आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक, थैंक यू। उसके बाद ये सिदरा मरियम ने हैंड रेज किया हुआ है। जैन माइक ओपन कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स? मैंने कर दिया माइक उनका ओपन, वो क्वेश्चन ना पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये बात पूछनी थी, आपने कहा 3.5 से प्लस सीजीपीए पे मतलब इजीली एडमिशन हो जाता है या आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा 3.58 जीपीए है, वो जर्मन में 1.67 में कन्वर्ट होता है, तो इज इट ओके? हाँ जी, 3.5 में तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई ना करो, अगर आप सीधा पोर्टल ऐसी यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करो जो उनका पोर्टल पे अप्लाई हो जाता है,
लेकिन आपको आइल्स लाजमी रहना चाहिए, एक तो आइल्स देना चाहिए। आइल्स के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी है जिनका आइल्स के बगैर भी एडमिशन हो जाता है। लाइक अगर कोई बच्चा में से एडमिशन अप्लाई करना चाहता है इन फ्यूचर, तो मुझसे बेशक आके मतलब मुझे मैसेज करके पूछने में उसको वो यूनिवर्सिटी बता दूंगा जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो आपका अगर जीपीए अच्छा है 3.5 से ऊपर ऊपर है, तो आप विदाउट आइल्स भी उन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर दो जिनमें आइल्स नहीं चाहिए। लेकिन आइल्स कर लो तो ज्यादा प्लस पॉइंट है, तो आपका एडमिशन होने का चांस अच्छा है, हो जाएगा एडमिशन। यूनिवर्सिटी के थ्रू भी ना अप्लाई करो फिर भी आपका चांस है। तो लेकिन कोशिश ये करो कि जिनका जीपीए 3.4 3.5 तक है उसको भी मिनिमम 5 to 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद वो चूज कर ले कि कौन सा सिटी अच्छा है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, तो आप उसमें फिर वो उसको एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर ले। फिर उसी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर होगा उसी को लेके वो एम्बेसी में जाए जिस यूनिवर्सिटी को उसने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो 3.5 पे अच्छे चांस है एडमिशन होने के। लाइक 3.3 3.4 से ऊपर जिनका जीपीए है उनके ज्यादा अच्छे चांस है। 3 पे भी 3.1 पे भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जरा अपनी प्रोफाइल को जरा अच्छा करना पड़ता है, और ज्यादा अच्छा लेटर मोटिवेशन लिखना पड़ता है। लाइक मेरा जीपीए 3 है, 3.01 है, और मैंने 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, और उनमें से मुझे एडमिशन 4 यूनिवर्सिटियों में आया, 11 यूनिवर्सिटीज में मुझे रिजेक्शन आई है। इस तरह जिनका जीपीए 3 से अप डाउन है उनको ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा चांसेस लेने चाहिए। तो जिनका जीपीए अच्छा है 3.3 3.4 से ऊपर है, तो वो जितनी कम यूनिवर्सिटियों में भी अप्लाई करे उनको ज्यादा चांस एडमिशन उनका उनमें भी हो जाएगा। थैंक यू सर। और सर ये बुक का नाम एक बार बता Thank you. दीजिएगा। ये बुक आपको ना ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ये कैफ आपको शेयर कर देगा ग्रुप में। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट्स कांटेक्ट भी आपका मांग रहे हैं, तो मैं उनका आपका एक तो लिंक्डइन शेयर कर देता हूँ, और अगर आप कहते हैं तो फिर मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, मेरा नंबर और लिंक्डइन से शेयर कर दो, ठीक हो गया, मैं बस ग्रुप में तो मुझसे वेबिनार के कॉन्टेक्ट बाद कर सकते ग्रुप हैं। में सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। ऑलराइट। मोस्ट स्टूडेंट्स को ना यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्टिंग में मसला होता है। लाइक मुझे मतलब किस तरह की यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, तो उसमें काफी लोगों को हेल्प चाहिए होती है। लाइक जब मैं अप्लाई कर रहा था तो यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के थे यूटी के, जिस तरह के एक उमैर खान है, ये तो असल में तो जब मैं अप्लाई कर रहा था उस वक्त तो ये नया नया यूट्यूब इसका चैनल, अभी तो आई थिंक 170 180 के इसके यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये काफी हेल्प करता था उस टाइम पे। तो जो लड़के इससे पूछते थे, इसके अलावा एक हसीब लड़का है मोहम्मद हसीब के नाम पे, तो वो काफी हेल्प करते थे, तो हम तो उनसे हेल्प लेते थे। तो यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करने में काफी लोगों को इशू होता है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, लाइक अपनी प्रोफाइल के मुताबिक किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें काफी लोगों को इशू होता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई पूछना चाहता है या किस तरह के कोर्स में अप्लाई करूँ उस तरह का कोई किसी का क्वेश्चन है, तो आप उनसे मेरा लिंक्डइन या मेरी व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दे, तो मैं इनको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज जैन यू कैन कंक्लूड द सेशन। So now we are done with the queries. It's time to wrap up the amazing webinar. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Your acknowledge has really uplifted the bar. I could like to thank to all our attendees for becoming the part of this amazing session. Thank you so much, guys. Stay blessed and positive. Allah अच्छा Hafiz. जैन वन सेकंड, आई गेस दो लोग थे जिन्होंने हैंड रेस किया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क ये जल्दी से। ठीक है, मैं उनका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने कर दिया। सवेरा I have a question. खालिक। जी जी। ठीक है सवेरा, यू मे आस्क। अच्छा, मुझे पूछना था कि अप्लाई का तो सारा प्रोसीजर समझ आ गया कि इस तरह अप्लाई करना है, उसका ये सारा प्रोसीजर है, लेकिन वीजा प्रोसेस और अपॉइंटमेंट्स का क्या रेशो है कि वो कितनी जल्दी मिल सकती हैं? क्योंकि लास्ट ईयर जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई किया था उनको अभी तक मिली नहीं है वीजा के लिए अपॉइंटमेंट, तो कितनी जल्दी मिल सकती हैं इसके लिए? जर्मनी गुड ऑप्शन इसमें है ये है हमारे कि लिए या नहीं? हाँ हाँ इसमें ये है कि वीजा का पाकिस्तान के अंदर इस टाइम थोड़ा सा बैड सीन चल रहा है। तो इससे पिछला इनटेक था, लाइक अभी विंटर इनटेक चल रहा था ना, अभी समर इनटेक स्टार्ट हो गया सितंबर में। इससे पिछला विंटर इनटेक था जिसमें मैंने अप्लाई किया था। तो उसकी जो बेसिकली इसमें जो वीजा के एप्लीकेशन जो वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसमें बेसिकली दो ट्रैक्स होती हैं। एक नॉर्मल ट्रैक है, एक फास्ट ट्रैक है। जिन जो उनका जीपीए 3.7 से अबव है, लाइक 3.7 से अबव जो गोल्ड मेडलिस्ट भी मेजरली होते हैं, तो उनकी अलग ट्रैक में उन्होंने अप्लाई करना होता है। मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ। तो उन्होंने उस कैटेगरी में जाके अप्लाई करना होता है। उनको जो मिलती है अपॉइंटमेंट वो विद इन 1 and 2 वीक आ जाती है। लाइक वो अप्लाई करते हैं 2 से 3 वीक्स में उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है।
उनको ईमेल आ जाती है कि आपकी फलाने दिन अपॉइंटमेंट है, और आप अपनी डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीज़ें वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं, ब्लॉक अकाउंट, जो जो चीज़ें, आपका एडमिशन लेटर, वो लेके आप एम्बेसी में आ जाओ इंटरव्यू देने। लेकिन वो लोग जिनका जीपीए 3.7 से कम है, वो नॉर्मल ट्रैक में फॉल करते हैं। और उसका इस इनटेक में, जो विंटर इनटेक थी, इसमें असल में कुछ इश्यूज थे जर्मन एम्बेसी के अंदर, कुछ फेक वीज़ा लगे थे कुछ स्टूडेंट्स के, जो सुनने में आया। कुछ लड़के थे जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक थे, उनके फेक वीज़ा लगे थे इस्लामाबाद एम्बेसी से। तो इस वजह से उन्होंने इस इनटेक में बहुत कम बच्चों को अपॉइंटमेंट्स दी हैं। लाइक इस इनटेक में, जिस इनटेक में मैंने अप्लाई किया, इस इनटेक में 70 से 80 स्टूडेंट्स की सिर्फ अपॉइंटमेंट आई है नॉर्मल की। फास्ट वाले जितने भी थे सारों को आई है। लाइक पूरे पाकिस्तान से फास्ट के भी, फास्ट ट्रैक के भी 600-700 बच्चा था जिनका 3.7 अबाउट था, उन सारों को मिली है अपॉइंटमेंट। लेकिन जो नॉर्मल ट्रैक के बच्चे थे, उनमें से अभी तक सिर्फ जस्ट आई थिंक 80 या 90 स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली है। जबकि इससे पिछली इनटेक में अगर देखा जाए, विंटर से पिछली जो समर इनटेक थी, उसमें नॉर्मल ट्रैक के 1300 बच्चों को अपॉइंटमेंट मिली थी। 1300 बच्चों को अपॉइंटमेंट मिली थी और उनका वीजा लगा था और वो जर्मनी गए थे। उसके पिछली जो विंटर इनटेक थी, उसमें 1600 बच्चे गए थे जर्मनी में। तो अच्छी रेशियो है, मतलब 1000 से 1500 बच्चों के अंदर अंदर बच्चों का वीजा लगता है, जो फर्स्ट 1500 बच्चे होते हैं। जिससे आपको मैंने बताया, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपका एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसमें जो टॉप 1500 बच्चे होते हैं उनको अपॉइंटमेंट इजीली मिलती है। लेकिन इस दफा अपॉइंटमेंट किसी को भी नहीं आई। टोटल 60 या 70, टॉप 60 या 70 बच्चों को आई है। अभी कोई असल में एम्बेसी ने नहीं बताया कि क्या इशू है, लेकिन सुनने में यही आया कि इनका कुछ फेक वीजर्स लगे थे, उसकी वजह से उन्होंने इस इनटेक में किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दी। लेकिन इंशाल्लाह जो अगली इनटेक है, जो अभी समर इनटेक स्टार्ट हो गई है, जिसकी अपॉइंटमेंट्स नवंबर में ओपन होगी, तो उसमें इंशाल्लाह दोबारा बच्चों को अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। और ये है कि जिसकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, सपोज मेरी अपॉइंटमेंट आ गई है और मैं वीजा इंटरव्यू के लिए चला गया हूँ, उसके बाद रिजेक्शन के चांसेस जीरो हैं। लाइक अगर अभी अपॉइंटमेंट आ जाती है, आप वीजा इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, अगर आप यूके यूएसए में अप्लाई कर रहे हो, तो आपका इंटरव्यू में भी रिजेक्शन हो जाती है, आप वीजा का इंटरव्यू भी आपका फेल हो जाता है। लेकिन जर्मनी का ये सीन नहीं है। अगर आपके पास एडमिशन है, ब्लॉक अकाउंट है और आपका इंटरव्यू भी आ गया, आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको 100% चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन मिलता उन्हीं को, अपॉइंटमेंट उन्हीं की आती है जो फर्स्ट 1000 से 1500 के अंदर होते हैं। और इंशाल्लाह जो अगली समर इनटेक आएगी, इसमें फिर 1000 से 1500 के अंदर बच्चे जो हैं उनको अपॉइंटमेंट आएगी। लेकिन इस इनटेक में नहीं आई, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है अभी तक। पिछले जितने भी 10 सालों की भी बात कर लो, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। सारे लोग वेट कर रहे हैं। कितने लोगों के पास एडमिशन लेटर है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं, उनको वीजा अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। तो इसमें ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास एडमिशन लेटर है, तो आप तो उनसे वो दुबई से भी अपना प्रोसेस करवा सकते हो, आप सऊदीया से भी करवा सकते हो। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दुबई से अपॉइंटमेंट बुक की है और वहां से गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सऊदीया से भी कर रहे हैं, लेकिन उससे जारी बात है, वो फिर एक्सपेंसिव है थोड़ा। सऊदीया का तो ये सीन भी है कि 6 मंथ्स का रेजिडेंस होनी भी लाजमी है अगर आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हो। लाइक आपने 6 मंथ वहां रहना है, उसके बाद आपने वहां से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लेकिन दुबई का इस तरह कोई सीन नहीं है। आप जाके दुबई में एमिरेट्स आईडी लो और वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके वहां से अपना वीजा ले सकते हो। ये सिर्फ इस दफा ऐसा हुआ है, लेकिन अगली इंटेक से इंशाल्लाह फिर 1000 से 1500 बच्चों के अंदर कॉमेंट्स मिलेंगी और वो जाएंगे। तो अच्छा रेशियो है जर्मनी का वीजास का, अगर बाकी कंट्रीज के हिसाब से देखा जाए। लाइक अगर आप फिनलैंड का देखते हो, तो फिनलैंड की तो एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप इटली का देखते हो, तो इटली की भी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। इटली की भी एक थर्ड पार्टी है, बीएलएस नाम है उसका, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक होती है, तो वो उनकी भी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। कुछ एजेंट्स हैं, वो अपॉइंटमेंट बुक करके बैठ जाते हैं और बच्चों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। इसके अलावा और कौन सा है? यूके का एक्सपेंसिव बहुत है। यूके का 70 से 80 लाख का खर्च है, और यूके का वीजा लग जाता है। लेकिन यूके का स्टडी वीजा एक्सपेंसिव बहुत है। इसके अलावा लोग फ्रांस की तरफ जा रहे हैं। फ्रांस के आजकल काफी अच्छे मतलब वीजा रेशो जा रही है। लेकिन जर्मनी की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि जर्मनी की एजुकेशन फ्री है। लाइक आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो, तो आपकी कोई फी नहीं है। आपने दो साल पढ़ना है वहाँ पे, कोई फी आपने नहीं देनी है। कुछ छोटी वैसे 100 से 200 यूरो होती है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी का कार्ड मिलता है, वो उसकी फी होती है। और उस कार्ड में आप पूरी जर्मनी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी पब्लिक बस में ट्रैवल कर सकते हो। वो कार्ड आपका उस सेंस में भी यूज हो सकता है। तो अपॉइंटमेंट के सीन में ये है कि इस इनटेक में अपॉइंटमेंट्स नहीं आई, लेकिन इससे पिछले अगर साल की बात किया जाए, तो पिछले अगर समर इनटेक और विंटर इनटेक को मिला के एक साल की बात की जाए, तो 3000 से 3500 बच्चों को आई है। और अब इस इनटेक में नहीं आई। अगर समर इनटेक में देखो, इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिस तरह बच्चे कह रहे हैं, और जिस तरह जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक वालों ने, उन्होंने उनसे पता किया वीजा ऑफिसर से, उन्होंने उनको यही बताया। इसी तरह मरियम ने हैंड रेस किया हुआ है।
जैन मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सिदरा मरीम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। There's a question in chat कि जर्मनी के लिए टोटल कितने एक्सपेंसेस लग जाते हैं रफली एस्टिमेटेड? अगर विद ब्लॉक अकाउंट देखा जाए तो ब्लॉक अकाउंट क्योंकि अब 11,800 हो गई है, तो उसको अगर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज में, वो तकरीबन 37 से 38 लाख बनता है, जो आपको वापस मिल जाता है 1 साल के अंदर। इसके अलावा जो फी है वो यूनिवर्सिटीज में यूनिसिस के थ्रू अप्लाई करने की फी है। अगर अगर लाइक अगर आप 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो 170 से 180 यूरो लग जाता है आपका। पहली एप्लीकेशन का 75 और उसके बाद 30 तो ये लग जाता है। इसके अलावा आपने आइट्स देना होता है, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी होती है, आइट्स 60-65 कर लो। इसके अलावा एचईसी की जो अटेस्टेशन है, आईपीसीसी की अटेस्टेशन है, इसको मिला के 1 लाख इसको कर दो, तो 40 लाख के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। उन 40 लाख के अंदर से भी जो 36-37 लाख है वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये टोटल रफली एस्टिमेट जो है वो 40 लाख का है। लेकिन अगर आपके पास 40 लाख है तो आप प्रोसेस कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लॉक अकाउंट जिनके पास नहीं होती, तो वो लोन भी ले लेते हैं किसी बैंक से, और 1 साल के अंदर उनको पैसे वो वापस मिल जाते हैं, तो वो लोन उनको वापस कर दिए हैं जिससे उन्होंने लिया होता है। तो इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है वो आइल्स का है, डॉक्यूमेंट एस्टेशन का है, और यूनियसिस के थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करने का है। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी भी हैं जो बाई हैंड डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, फिर उनको भेजने होते हैं, तो आप वो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, जीपीओ के थ्रू, या आप टीसीएस के थ्रू भेज सकते हो, तो उसमें भी खर्चा आ सकता है। लाइक अगर आप जीपीओ के थ्रू भेजते हो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, तो उस पर आई थिंक 1000 से 1500 में आपके डॉक्यूमेंट जर्मनी चले जाते हैं। लेकिन अगर आप टीसीएस के थ्रू, डीएचएल के थ्रू भेज रहे हो, तो वो आई थिंक 7 से 8 थाउजेंड लगता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। लेकिन उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स 4 या 5 दिन में जर्मनी पहुंच जाते हैं, और पाकिस्तान पोस्ट में आपके 2 वीक हैं डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में। तो रफली ब्लॉक अकाउंट को मिला के 40 लाख लगता है, लेकिन अगर ब्लॉक अकाउंट को छोड़ दो तो आई थिंक 3 से 4 लाख का खर्चा है। वो टिकट को मिला के अगर करो तो फिर 5-5.5 लाख का कर लो। देयर इज अनदर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। एमएस के बाद वहां सेटल होने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, अच्छा क्या करना होगा? अच्छा, एमएस के लिए तो आपको यहाँ से, आपका यहाँ से लगेगा स्टडी वीजा। वो स्टडी वीजा भी बेसिकली 2 साल का नहीं लगता, 18 मंथ्स का स्टडी वीजा नहीं लगता। यहाँ से आपका वीजा लगता है 3 मंथ का। जब आपको पाकिस्तान से वीजा मिलता है वैसे से वो 3 मंथ्स का होता है। जब आप 3 मंथ्स का वीजा लेके आप उस सिटी में चले जाते हो, जो जहाँ की सिटी की, जिस सिटी में आपका एडमिशन हुआ होता है, तो आपने उस सिटी के सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना होता है, और वहां से अपना वीजा एक्सटेंड करवाना होता है। लाइक आप उनको बताते हो कि मेरा मास्टर्स है, तो आपका वीजा वो कन्वर्ट करके आपका 2 साल का या 18 मंथ का वीजा कर देते हैं। तो उस 18 मंथ में अगर आपका मास्टर्स हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप उसको दोबारा एक्सटेंड करवा लो, लाइक आप उसको 1-2 साल आगे एक्सटेंड करवा लो। बहुत से लोग हैं जिनकी मास्टर्स 3 साल में वहाँ पे होती है, 4 साल में होती है, तो वो अपने वीजा को एक्सटेंड करवाते रहते हैं, स्टडी वीजा को एक्सटेंड करवाते रहते हैं। जब आपका स्टडी वीजा खत्म हो जाता है उसके बाद आपको मिलता है जॉब सर्च वीजा। वो 18 मंथ का होता है, या 21 मंथ का होता है बल्कि। वो उस 21 मंथ के अंदर आपने अपनी जॉब सर्च करनी होती है। मेजर स्टूडेंट्स को तो उससे पहली जॉब मिल जाती है, लाइक वो स्टडी कर रहे होते हैं, साथ साथ वो जॉब कर रहे होते हैं, उनको फुल टाइम जॉब मिल जाती है। तो वो भी सब जॉब सर्च वीजा पे जाते ही नहीं है, वो सीधा स्टडी वीजा से वर्क वीजा पे चले जाते हैं। लेकिन जिनको जॉब नहीं मिलती वो फिर स्टडी वीजा से जॉब सर्च वीजा पे जाते हैं 21 मंथ्स के लिए। और जॉब सर्च वीजा में जब उनको जॉब मिलती है तो वो उसको वर्क वीजा पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। और जब आपकी 5 ईयर्स आपको जर्मनी में गुजर जाते हैं, लाइक स्टडी वीजा के अगर 2 साल कर लो, 2 साल जॉब वर्क वीजा के कर लो, जॉब सर्च वीजा के कर लो, और 1 साल 2 साल वर्क वीजा के कर लो, तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप वहाँ अपना अप्लाई कर सकते हो, अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहले ये था कि पहले 7 या 8 साल आपको जर्मनी में रहना पड़ता था, तो फिर उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई होता था, लाइक रेजिडेंसी के लिए, जर्मन पासपोर्ट के लिए। लेकिन अभी जो नए रूल्स आए हैं 4 या 5 मंथ पहले, उसमें यह है कि आप 5 साल अगर आपको जर्मनी में हो गए हैं किसी भी वीजा पे, स्टडी वीजा पे, वर्क वीजा पे, जॉब सर्च वीजा पे, तो आप उनकी रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल के अंदर अंदर आपको जर्मन पासपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये है। और जॉब जो है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, लाइक अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्किल्स हैं, आईटी की जॉब तो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी पार्ट टाइम जॉब्स में भी हर तरह की जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप अच्छी सिटी में हो, लाइक berlin में हो, म्यूनिक में हो, इसके अलावा डार्मस्टेड है और लंदन है,
इन सिटीज में हो तो वहाँ पे तो पार्ट टाइम जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल सिटीज में हो तो वहाँ पे थोड़ा इशू होता है पार्ट टाइम जॉब्स का। तो पार्ट टाइम जॉब्स भी आपको इजीली वहाँ पे मिल जाती हैं, और फुल टाइम जॉब्स भी आपको, अगर आपके पास है थोड़ा सा, पाकिस्तान में आपने कोई जॉब की हुई है और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आपको फुल टाइम जॉब भी इजीली मिल सकती है। लाइक ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले सालों में गए हैं वो भी फुल टाइम जॉब भी वहाँ पे कर रहे हैं, तो अच्छे चांसेस है वहाँ पे सेटलमेंट होने के, सेटल होने के। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन है सर, जी। वहाँ के अकोमोडेशंस के एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस कितने लग जाते हैं? जब आपको एडमिशन मिल जाता है किसी यूनिवर्सिटी का, सपोज आपको बेर्लिन की यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिल गया, फिर आपने अपनी अकोमोडेशन को देखना होता है, आपने अकोमोडेशन ढूंढनी होती है। अकोमोडेशन ढूंढने के लिए आपकी हर यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स भी हैं, आप उन हॉस्टल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक एक वेबसाइट है, उसको कहते हैं स्टूडेंट वर्क। आप स्टूडेंट वर्क की वेबसाइट पे जाओगे, लाइक सपोज अगर आपका बेर्लिन में एडमिशन हुआ है, आप स्टूडेंट वर्क बेर्लिन की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे आप अपनी एक अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अकोमोडेशन अगर आपको तो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन मिल जाती है, तो वो 300 से 400 यूरो के अंदर अंदर होती है। लाइक 350, 360, 370 यूरो के अंदर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है यूनिवर्सिटी की। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं मिलती, अगर आपने प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना होता है, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो उनमें आप जाके अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन बुक करते हो, वो आपको 450, मतलब वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर आप बड़ी सिटी में जा रहे हो, फ्रैंकफर्ट में जा रहे हो, बर्लिन में जा रहे हो, म्यूनिख में जा रहे हो, तो वहाँ पे रफली 500 से 550 के अंदर आपको अकोमोडेशन मिलती है। लेकिन अगर आप छोटी सिटी में जा रहे हो तो वहाँ आपको 300 से 400 के दरमियान वहाँ पे भी आपको मिल जाती है अकोमोडेशन। तो इन टोटल अगर आपको अकोमोडेशन का कहा जाए तो 450 से 500 का आपका अकोमोडेशन का खर्चा है जर्मनी के लिए। अगर आप एक मंथ का फुल एक्सपेंस देखो अपनी अकोमोडेशन को मिला के, तो वो 800 से 900 आपका मंथली लगता है वहाँ पे, जो आप इजीली आप अर्न कर सकते हो अगर आप दिन के 4 घंटे काम कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि दिन के 4 घंटे अलाउ होते हैं आपको, कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। क्योंकि पर और वहाँ पे आजकल आई थिंक 13 से 14 यूरो है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपना मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हो कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके वहाँ पे, और अपना ब्लॉक अकाउंट आप सेव करके वापस पाकिस्तान भेज सकते हो। इसके अलावा भी डिफरेंट मेरे जर्मनी के ख्याल ग्रुप्स हैं, लाइक लाइक फेसबुक पे जाके ना स्टडी इन जर्मनी लिखोगे आप, तो आपके पास काफी ग्रुप्स आ जाएंगे जो पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं। तो आप उनको ज्वाइन कर लो, उसमें काफी हेल्पिंग पोस्ट होती है, तो उनको आपको रीड करना चाहिए, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। फेसबुक के ऊपर जाके स्टडी इन जर्मनी के या लाइफ स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी के नाम पे एक ग्रुप है, उन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you for inviting me. Thank you, Kev. Thank you, everyone, for arranging such an informative webinar for the members who वेलकम। joined this.